1996 में एक चेहरा पर्दे पर से कहीं गहरे झांका था। एक चुप सी शख्सियत लिए वो कुछ ऐसे किरदार ओढ़कर उभरा था कि सिनेमा के दर्शक थम से गए थे। तेरे मेरे सपने और फिर माचिस ने हिंदी सिनेमा को एक नया अदाकार दिया था, चंद्रचूड़ सिंह। बेताबी, जोश, क्या कहना जैसी फिल्मों ने उसे परखा, पर शायद साथ ही साथ उसे एक सांचे में ढालना शुरू कर दिया। जिंदगी ने रंग बदला, कुछ बादल छाए, वक्त ने परख ली और चंद्रचूड़ धीरे से बदलते हालातों में सिमटकर बहाव का रुख समझने में जुट गए। और इस लंबी चुप ने जीवन के मायनों को सोच दी, समझ को एक नई उड़ान मिली और चंद्रचूड़ धीरे धीरे समुद्र की सतह पर वापस उभरने लगे। जिला गाजियाबाद और द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जैसी फिल्में तो आई हैं, साथ लौटा एक कलाकार जो खाना पकाने में और गाने में खुद को पाता है। बीते वक्तों से छन कर उभरे चंद्रचूड़ से एक मुलाकात बिटवीन अस। वेलकम टू द शो चंद्रचूड़ जी। थैंक यू सो मच। आप पंजाब में इस वक्त शूट अभी आपने वाइंड अप की है अपनी एक फर्स्ट पंजाबी फिल्म जस्ट यू एंड मी जी। दिस इज योर स्टेप इनटू पंजाबी सिनेमा। Actually, yeah, it's my first in Punjabi cinema. It's been a nice experience. Got to meet some interesting people, made some friends. पंजाबी बोलना आसान लगता है कि मुश्किल लग रहा है थोड़ा? थोड़ा बहुत मुश्किल तो होंदी सी, पर मैं कोशिश करता सी। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में जी। वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। आपको सोचते हैं तो माचिस आती है दिमाग में जी। उसमें तो वो पूरा पंजाबी मिलियो याद आता है, दिमाग में आता है कि आपको पंजाबी शायद ठीक से आती होगी। It's good because there's an association, and there's a love, a common love. See, because until and unless I learned to love the script, which is what Gulzar Saab taught me, read the script again and again and again. That got me close to the film. Yeah. My empathy, my understanding, even though there is, I have relatives in Punjab, it became much stronger after reading the script of Machis. आपको बहुत सालों बाद देखा जा रहा है। जी। बीच में आप you somehow just paled away, you know, वो vanished. एक मिस्टर इंडिया का मैं बन गया था ऑफ स्क्रीन. So I was planning to act in Mr. India Part 2, so I disappeared for a while and I came. No. It's just that I've been there. I've been doing selective work. You know, I had 2 films released last year, 2 films released this year. One of them is a significant film called The Reluctant Fundamentalist. and जिला गाजियाबाद। हाँ, रिलीज हुई है। पहले जो लास्ट ईयर जो रिलीज हुई हैं, वो 4 दिन की चांदनी और प्रेममयी, फिल्म ऑन मैरिटल डिसहार्मनी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। फिल्में तो मैं कर रहा हूँ, पर अब मैं ज़्यादा ओपन हो गया हूँ। पहले मैं बहुत चूज़ी हो गया था बीच में। कुछ अपने डिसीशंस थे जो इनकरेक्ट थे, कुछ मार्केट की तरफ से भी इंसान जो है ही गोज़ थ्रू अप्स एंड डाउन्स. आई वेंट थ्रू माई डाउन एंड आई गॉट आउट ऑफ इट अ बेटर पर्सन, थैंक गॉड. इट इज़ ग्रोथ विद पेन and it's also good to, you know, reflect and introspect and get time to spend with yourself, because, you know, once you're in the business and you're really working hard, then it's all about your time, and time is money, and it becomes like a rat race, and then you have no time to recharge your battery, so to speak. The best people that you meet are your co-actors, who are all stimulating people intellectually, but you need time to read books, you need time to see cinema, you need time for yourself, you need time for music, to grow, to learn. There's no end to the vast repertoire of work given by God through many artists over centuries. And so you get a chance to delve into that nectar in your times when you have a lot of time on your hand. Be a father was a new thing for me, and I'm passionately involved in my son's life. That happened because, you know, I was luckily I didn't have so much of work, so I had time to be with my child. How old is he? He's 6 years old. Okay. लेकिन ये पीरियड जो रहा है of recharging your batteries, and there was a shoulder injury. There were injuries, there were operations. It happens, lots of To stuff everybody. happened. It happened, when it rains it pours. ये जो साल आपने देखे हैं in between, जी. इसने आपको क्या दिया है as an artist? As an artist, as a human being, देखिए कहाँ आइडेंटिटी मिक्स हो जाती है आपको पता नहीं चलता. कभी कभार अगर आपका stupendous growth हो as an actor in terms of the market, then you live in a cocoon. Yeah. And that's got its negatives also, because then what happens is you get insulated from the world. The reality. The reality of the world. You live and the growth becomes stunted. Not always, it happens sometimes. 2 रास्ते हैं ज़िंदगी में. एक रास्ता है मटीरियलिज्म का,
एक रास्ता है स्पिरिचुअलिज्म का और लोग सोचते हैं रास्ते अलग अलग हैं, पर मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये रास्ते एक ही हैं। क्योंकि आपको संसार में रह के संसार योग करना है जी, कि आप जो हैं काम करे जाने हैं और उसमें आपके मॉरल्स, एथिक्स, धर्म ये सब मेंटेन करके करना है, तो उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है और स्पिरिचुअल ग्रोथ में मटेरियल ग्रोथ भी होती है। सो इट्स बोथ गो हैंड इन हैंड। एवरीथिंग is one. We just compartmentalize and we just start feeling that this is the actor, not the person. But the person is much larger than the actor. Actor is a facet, a part of it, and his contribution is immense. आपने एक अभी बात कही कि एक आर्टिस्ट में एक डेंजर होता है, बीइंग एन आर्टिस्ट, स्पेशली फिल्म स्टार और फिल्म एक्टर, जी वो अपने आप को गवा सकता है। जी ऐसे डेंजर महसूस किया था जब आप शुरू में आए थे, बिकॉज सडनली यू वर दिस बिग थिंग, एंड हाउ डिड यू हैंडल इट? वर यू अवेयर ऑफ इट इफ इट हैपेंड टू यू? Yes, I started observing it as a third party. I said just yesterday nobody looked at me. Suddenly wherever I go, heads turn. I found it a little unreal, I guess. So I could detach myself from the situation and look at it as a third party. It's difficult to handle success and fame too, as much as it's difficult to handle failure. आपको वो पल याद है कि जब तेरे मेरे सपने रिलीज हुई थी, जिस पल वो रिलीज हुई थी, जी उस दिन, उस फ्राइडे को आपकी ज़िंदगी में और आपके स्टेट ऑफ माइंड में क्या चेंज आया था, क्या महसूस किया था आपने वो पल? एंड द नेक्स्ट डे व्हेन यू रेड द रिव्यूज, we saw an audience reaction in both Tere Mere Sapne, especially in March, as I remember. In Bombay, it was a tepid response. When we came to Delhi, it was not really a premiere. 96 अक्टूबर जी। और दिल्ली में आए तो फिर इतनी भीड़, 5 मिनट 10 मिनट पिक्चर के गुजरे हैं, सारे कैरेक्टर्स को नाम से जानते थे। तो मैंने देखा ये क्या हुआ, मतलब आई सॉ दैट it was wonderful, but it seemed, as you know, because it takes a little while for things to sink in, it seemed unreal. It's easy to get carried away by it, but it's better to be grounded, because you've seen an extreme here, an extreme there, and I had my share of struggle before, so I did know that this is what happens, when things fall in place for you. People's perception towards you can change drastically, whether it's up or down. People have not spared even the greats in this industry when they go through a low time. When you're a newcomer and you make a splash like that, you understand the dynamic. Somewhere the maturity was there by God's grace to understand the dynamic that is the two sides of a coin. It can turn around tomorrow too. You were being touted as one of the next big things, वो तो था ही, और साथ में कुछ पैरेलल्स भी थे, अमिताभ बच्चन के साथ पैरेलल था, मे बी। एक तो ऑफ कोर्स यू वर 11th October born, I think, and probably that was considered, but you were tall and you were intense. I think you fit in that. वो महसूस बाहर किया था आपने, और उसको अपने आप से दूर रखने की कोशिश भी की होगी? एक्चुअली उससे दूर नहीं रह सकते आप, पीपल के एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। मीडिया ने मुझे बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया और मैंने अपने आप को प्रेशराइज होने दिया। हाँ जी, सबको होता है। अमिताभ बच्चन जी जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया है, वो इंस्टीट्यूशन है, उनसे कंपेयर करना आपको बहुत बड़ी बात है भैया। उन्होंने कितने साल, कितनी वर्सेटैलिटी, कितनी ग्रोथ एज एन एक्टर दिखाई है, और शुरुआत में ही बोल दीजिए कि आप अमिताभ बच्चन हैं, कितना प्रेशर हो सकता है इंसान के ऊपर। प्रेशर था जी, और आई डोंट इवन कंसिडर माई सेल्फ एनीवेयर क्लोज टू अमित जी। अमित जी इज़ द बेस्ट, एंड आई मीन just a competent actor. I like acting. That's it. अच्छा, स्क्रीन पे जब तेरे मेरे सपने या मैचेस या उसके बाद जो भी फिल्म आई थी, इवन जोश या बेताबी जी, आपकी जो इमेज थी वो ये थी कि अ शाय, इंटेंस, क्वाइट, रेटिसेंट काइंड ऑफ अ यंग मैन। वो इमेज कैसे बनी? क्या आप सच में ऐसे रहे हैं? एक मेरा सीरियस नज़रिया है दुनिया की तरफ, तो उसके बारे में बात करता था खुली तरह से मैं इंटरव्यूज़ में, तो शायद उसकी वजह से एक परसेप्शन बना। और दूसरी बात ये थी कि जो फिल्में मैंने की, जो रोल्स किए, उस रोल्स में मुझे उसी तरह टाइपकास्ट किया गया, तो उसकी वजह से लोगों का जहन में यही हो गया कि मैं ऐसे हूँ। पर एक्चुअली मेरा दूसरा पहलू जो है, वो एक जो हर कलाकार में होना चाहिए, जब तक है तब तक वो कलाकार बढ़ता रहेगा, ग्रोथ होती रहेगी, वो है कि बच्चे का वेरी प्लेफुल, वेरी चाइल्डिश,
childlike actually, I would say. I've done Amdani Thanni Kharcha Rupaiye, but I'd love to do comedy, or I have, you know, some humor in me. तो आपने ट्रैप्ड महसूस किया ना? Oh yes, because इस ज़माने में तो एक्टर्स जो हैं तो कैरेक्टर बेस्ड फिल्म्स बन रही हैं. When I was working, there was one could not get out of an image, and now an actor can jump from one to another, negative to comedy to action to romance. आपको इस तरह का प्लेग्राउंड अभी तक मिल पाया है जिसमें कि यू नो यू एबल टू टच योर एक्सट्रीम्स एज एन एक्टर? I'm waiting for that playground, but I'm enjoying the journey. When it comes. But otherwise, I enjoy you know playing characters which are challenging. चौमुखी अगर कलाकार नहीं हो तो फिर मज़े नहीं आते. एक एक्टर होने के नाते ऐसी उसमें क्या चीज़ है इस पूरे यू नो इस प्रोफेशन में, इस वे ऑफ लाइफ में जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है? मुझे ये बात बहुत एक्साइटिंग लगती है कि जब मैं कई ऐसी पिक्चरें देखता हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान की हों, चाहे वो हिंदुस्तान का मतलब रीजनल सिनेमा भी, चाहे वो हॉलीवुड की सिनेमा हो, चाहे वो यूरोपियन सिनेमा हो, उसमें अगर आप कुछ ऐसा काम कर जाएं जिसकी वजह से आपका जो काम जो है उसको बार बार देखने का मन करे. मैं ऐसी पिक्चरें देखता हूँ जो क्लासिक्स हैं. वो क्लासिक्स को बार बार देख के इंसान सीखता है कि इसका ये भी नज़रिया है, वो भी नज़रिया, साथ साथ आपकी एंटरटेनमेंट भी होती है. अगर आप मेरा नाम जोकर देखेंगे, जो राज कपूर जी, उसमें आप देखेंगे लेयर्स हैं, गाने में लेयर्स हैं, फिल्म में लेयर्स हैं, और उसकी सिंबॉलिक मीनिंग भी है, डीपर मीनिंग टू द फिल्म. तो आपको देखकर भी एज एन ऑडियंस, एज एन एलिटिस्ट ऑडियंस भी अच्छा लगता है, एज ए नॉर्मल ऑडियंस भी अच्छा लगता है कि रिपीट वैल्यू कितनी है और आप अमर हो जाते हैं, कैप्चर्ड ऑन सेल्यूलॉइड. You were lucky enough to work with Gulzar though. I was very lucky to work with Gulzar Saab. Very lucky. I'm tempted to ask you, you know, what makes Gulzar Gulzar? He's a very wonderful human being, very blunt, honest, grounded, practical, kind, gentle, firm. चौमुखी कलाकार. उनके डायलॉग, उनके स्क्रीन प्ले, उनकी म्यूज़िक सेंस, उनका लिरिसिज्म, उर्दू की तरफ जी, सिंप्लिसिटी, उनकी उर्दू की तरफ जो देन है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, सीरीज़ मेड बाय हिम ऑन मिर्ज़ा गालिब, अभी तक उनके अंदर जो है वो पुराने ज़माने की एक जो अदब, एक ह्यूमिलिटी है, बहुत कमाल के इंसान. बतौर एक्टर शुरू किया आपने अपना सफ़र. Was there any particular kind of cinema or roles that you had in mind कि मुझे इस तरह का काम करना है? और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मैंने इतना डीपली सोचा नहीं था एक्टिंग के बारे में. मैं स्कूल में एंटरटेनमेंट करता था, फिर कॉलेज में मैंने थिएटर किया, फिर सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए बैठूंगा. बट डेस्टिनी हैड इट अदरवाइज. यू नो, ऑफर्स केप्ट कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, एंड देन फिल्म शूटिंग स्टार्टेड, एंड वन फिल्म ऑफ माइन वाज इनकम्प्लीट. In 1990 we started after I finished my third year college. You mean तेरे मेरे सपने से पहले? जी हाँ, एक पिक्चर थी जब प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें हीरोइन थी सुचित्रा कृष्णमूर्ति जी. उसमें थे टॉम ऑल्टर साहब, शक्ति कपूर साहब, आशुतोष गोवारिकर और अमीन करीम, और जॉय गस्टिन ने उनको डायरेक्ट किया था, जिसने तेरे मेरे सपने किया था. किया जी. तो then I did this film and it was incomplete because of financial reasons. उसके बाद कई साल स्ट्रगल किया. स्ट्रगल करने के बाद 95 में बीच में मैंने कोशिश की कि अगर मैं एक्टर नहीं बनना चाहूँ तो क्या बनना चाहूँगा. आई वांटेड टू बिकम अ टीचर एंड आई वांटेड बिकॉज आई गॉट जॉब सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट. आई ट्राइड टीचिंग म्यूजिक इन वसंत वैली, दिल्ली. आई ट्राइड टीचिंग हिस्ट्री इन दून स्कूल फॉर अ टर्म, and I think it went off beautifully for me, and my headmaster didn't want me to leave, but destiny had other plans. Then when I got myself a permanent job, at that time I was called, Jayaji had seen some pictures of mine, Tere Mere Sapne, which was initially to be directed by the late Shri Bharat Rangachari ji. Then unfortunately he passed on, and then I recommended Joy Gustin to Jayaji, and then there were some meetings and he was finalized with the film. And then I got Gulzar Saab's Marches at the same time. So there were two films which came, and everything happened so smoothly. And then I had to give up that job as a teacher. आप म्यूज़िक की बात कर रहे हैं. सबसे पहले अभी रिसेंटली 2009 में आपकी मूवी आई थी मारुति मेरा दोस्त जी. उसमें आपने गाया भी है. जी. आप अगर कुछ गुनगुना सके तो we would love to hear something from you. If you could, then we could carry on the conversation. लाज रखो तुम मोरी, लाज
लाज रखो तुम मोरी, ध्यान धरूं और लागूं पैया, लाज रखो तुम मोर, लाज रखो तुम ये मोरी, लाज रखो तुम मोर. This is a big piece of rag Charukeshi. This is a composition of Ustad Amir Khan Sahab. I love listening to him. बहुत सुर में था और बहुत ही खूबसूरत था. Thank you so much. ऐसा लगता नहीं कि आप आप रियाज बैठ के रोज रियाज नहीं करते हैं. जी नहीं कर पाता. I wish I had the luxury. आपको देखकर और जो आपने बताया, you've been lucky in a way कि आप कभी भी you were not trapped by strong ambition. Yes, that you're right about that. You've been traveling easy, and flowing along as life has treated you. Yes, I guess Taken so. you wherever it has taken I you. guess. और वो आपके चेहरे पे आपके किरदारों में दिखता भी है. शायद इसीलिए आपको उस तरह के ही किरदार मिलते रहे हैं. शायद. अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिंग क्या रही थी उस वक्त और अब उसमें क्या एवोल्यूशन आई है? मैं ज़्यादा आर्ट पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ. ये मेरी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है. क्राफ्ट होना बहुत ज़रूरी होता है. मिश्रण ऑफ आर्ट में क्राफ्ट होना बहुत ज़रूरी होता है. उसकी बेस्ट एग्जाम्पल श्री अमिताभ बच्चन है. अब मैं आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तो क्या होता है कि मैं इंस्टिंक्टिव एक्टिंग करता हूँ. आई डोंट नो वेयर द ग्रोथ इज एंड आई कांट बी ऑब्जेक्टिव अबाउट माई सेल्फ, बट आई ट्राई एंड लर्न. एंड आई थिंक द बेस्ट टीचर इज वर्क. व्हेन यू वर्क यू कीप ग्रोइंग. You don't even know where the growth takes place. In the craft, I'm going to start getting a little more interested, but the technique never really interests me. Camera angles, all this is important stuff, but it's more, am I getting the feeling right? I just feel every performance is new, every day is new, every moment is new. जब एक रोल या किरदार आपके सामने आता है, पर लाइफ की एक्सपीरियंस है ना, वो ऑटोमेटिकली आप अगर आप किरदार निभाएं You तो absorb. आप समझते हैं. देखिए अगर कोई पिक्चर आप देखें 10 साल पहले और 10 साल बाद देखें तो उसमें आपकी ज़िंदगी में, आम इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी बदलाव आती है. शायद कुछ एक्सपीरियंस जो पिक्चर में जिससे आप एसोसिएट नहीं कर पाते, 10 साल के बाद उससे आप एसोसिएट कर पाते, क्योंकि वो आप खुद गुजरे हैं उससे. जब तक इंसान के हाथ खुद नहीं जलते तो उसको समझ में नहीं आता कि आग क्या है. ये जो सारे किरदार निभाए हैं, इन सब में अभी तक सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग रोल कौन सा रहा है आपके लिए? अनडाउटेडली माचिस ना? अनडाउटेडली माचिस. क्यों? इमोशनल आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. एज एन आर्टिस्ट one was almost living the role. That only happened because of Gulzar Sahab. That only happened because he shot the film almost at one stretch. If the crew was together, there was a very good, strong, positive energy. One almost felt like Kirpal almost felt as if I was part of Punjab and I lived here and I went through that. And it happened on a very subconscious level and our director knew exactly what he was doing. अच्छा, reluctant fundamentalist. Again, Meera Nair is another Fine director, very fine director. Yes. उनसे क्या सीखा आपने और वो एक्सपीरियंस क्या रहा? उनसे ये सीखा कि उनमें जो भूख है, उनमें जो हंगर है, उनमें जो एक बच्चा है, उनके अंदर भी जो बच्चा है वो जिंदा है. शी इज ओपन टू सजेशन, शी वर्क्स हार्ड, शी डजंट हैव एनी ईगोज, एवरीथिंग इज वेरी वेरी डेमोक्रेटिक, पैशनेट अबाउट हर वर्क, शी लव्स हर वर्क एंड शी इज done a great body of work and she's continued it with the reluctant fundamentalist. You'll admit आप काफ़ी blessed हैं कि एक तो आप एक्टर हैं, ऊपर से आप म्यूजिशियन हैं, you can sing. इस तरह की ज़िंदगी जो भी इसने आपको लिबर्टी दी है, जो फ्रीडम दी है, एक्सपीरियंसेस दिए हैं, इसने आपकी एज अ स्पिरिचुअली और इमोशनली एज अ ह्यूमन बीइंग किन किन चीज़ों में हेल्प किया आपकी? रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी, उन्होंने हमारे बहुत बड़े कवि और एक्टर थे. उन्होंने कहा था कि every human loss of ours turns into a godly gain. As heaven opens star by star, the spirit opens pain by pain. It's never too old to start something new. 30 साल की उम्र के बाद मैंने कुकिंग में रुचि रखी.
पहली बार बनाया खाना, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो मुझे भी इनकरेजमेंट मिली, तो फिर मैंने कुकिंग काफ़ी सीरियसली ली. You hosted a show, Royal Rasoi. I did. I hosted a show where I ate with relish and I cooked alongside, and I learned quite a bit of recipes. And cooking is a passion which is a newly acquired skill in life, so to speak. Then astrology is something which has become a interest factor for me. जी I've opened up also as a human being because experiences also make you open up. जी Both as an actor, both as a human being. One person starts wondering कि मेरी ज़िंदगी मैं कुछ नहीं. अरे दुनिया भर की ज़िंदगी चल रही है, सबको अपने everyone has a cross to bear. तो मैं से निकल के अगर देखो तो दुनिया बहुत बड़ी है, पर वो जो मैं ना फंस जाते हैं हम लोग कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, अरे भैया सबके साथ हो रहा है. तो आपको एक चुना नहीं गया है कि आपके साथ कुछ हो, इसकी कोई वजह है, इसकी कोई वजह है, और आप उसको आप लीजिए. जब आप अच्छी चीज़ें होती तब तो आप मैं नहीं करते ना, तो आप अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों लीजिए. भगवान के दोनों देन है, आपके ही कर्म का है. भगवान आपको कुछ नहीं दे रहा है, भगवान आपकी रक्षा कर रहा है. वो इनका पर्पस यही है कि आपका सोल एवोल्यूशन की तरफ जाए, इवॉल्व हो, और हम बेहतर बने, हम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ें स्पिरिचुअली. जिस तरह के आप हैं, जिस तरह की आपकी सोच है, फिल्म इंडस्ट्री जैसी बहुत कमर्स ड्रिवन एंड बहुत फ्लफ ऑल्सो यू नो ट्रैप्ड काइंड ऑफ इंडस्ट्री में ऐसे मोमेंट्स आते होंगे या आए होंगे पहले जब आप इतने स्ट्रांग नहीं थे शायद, कि आपको लगा होगा कि यार आई डोंट बिलोंग हियर. Yes, maybe there was moments where I felt alienated, I would say isolated. But it's all in the mind. Now I feel I belong in and outside. It's Everywhere. a different feeling. Yeah, work has become a joy for me. So I'm dancing like a child when I'm working. Yeah. Earlier it would be, I would be very serious. I must get my Pressure. take right, and I must get it like this, and I don't think anyone should take everything too seriously. थोड़ा सा with a pinch of salt. Yeah. And enjoy everything while you're doing it. जी. आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त क्या अपने आप से क्या पाना चाहते हैं, और अपनी इस जर्नी में यू नो आप क्या, व्हाट आर यू सीकिंग? Conventionally, I don't have much ambition, राइट. but definitely I want to express myself as a creative person, whether it's through music, whether it's through cinema, whether it's through the arts. There is so much to do as a father in my child's life to contribute there. I don't have any agenda. I just will go, as you said, with the flow and see where life takes me, where God is protecting me, and what my journey is supposed to be. Yeah. There must be a reason why I've learned so much. Probably it has to find an expression somewhere. Probably through the medium of art, because art is, as in cinema, because cinema is such a big medium. If you got something to say which can make a difference in the lives of people, and there is some significant work, Yeah. the easiest medium and the fastest medium, and which stays forever, is cinema. So I want to do some uplifting work which will uplift my soul, uplift the souls of others, something which inspires. राइट. इससे पहले कि वी से थैंक्स टू यू एंड से बाय, आप लास्ट में फिर से आप कुछ अगर सुना सकें तो अपनी पसंद का. जी बिल्कुल. There's a favorite bhajan of mine sung by Pandit Bhimsen Joshi, composed by Jaydev ji. रघुवर तुम हो मेरी लाज, रघुवर तुम हो मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम हो गरीब निवास, रघुवर तुम हो मेरी लाज, पतित उदाहरण गिरद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज, तो पतित पुरातन करिए, पार उतारो जहाज, तुम हो गरीब निवास, रघुवर तुम हो मेरी लाज, रघुवर तुम हो मेरी लाज. In the middle I went off a little bit. Mesmerizing. Thank It you. was beautiful and उम्मीद है यू नो प्रेयर है, प्रार्थना है कि आप जो भी आपकी जर्नी है आप उसमें जितना आगे जा सकें, यू नो जितनी भी आप में
कैपेबिलिटी हो इस जन्म में, you know, you able to achieve that. Thank you so much. So kind of. Thank you. Thank you so much. शोर से कहीं दूर किसी पाक पर्वत को मन में बसा लेना वरदान है, और ये वरदान चंद्रचूड़ ना सिर्फ पा चुके हैं बल्कि उसे सहेज कर रखना भी जानते हैं। इनका सफ़र ऊंचे से ऊंचे मुकाम को छू पाए, यही दुआ है बिटवीन अस। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।